देखिए, इनकी पहली फिल्म है तो शुरुआत इनसे ही करते हैं। जी मेरा रोल एक्चुअली बहुत ही स्पेशल है। मैं सबा नाम की एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ एंड शी इज़ वेरी डियर टू मी। आई थिंक वी बिकेम वेरी क्लोज ड्यूरिंग दिस फिल्म एंड शी इज़ अ वेरी यूनिक कैरेक्टर और मैंने एक्चुअली सबा से बहुत कुछ सीखा है. There are a lot of similarities between me and Sabha, but there's a lot of differences. And what I found very special about her in terms of her character was that she had a story, she had a graph. कभी कभी आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते हो और इट्स जस्ट you're just showcasing a girl or you're just showcasing a character. But Sabha को लेकर she had a different start in the film and she grows into something very very different. और मुझे वो बहुत यूनिक लगा और मुझे वो कहानी से एक बहुत ही connectivity मिली. I think that I've also faced a certain graph very early on in my life and I connected to her graph very very much so and I found that very special. तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, देखते हैं कि अभी ऑडियंसेस को कैसे लगेगा. और मैंने तो बहुत मेहनत की है और दिल से काम किया है, जेन्युइनली दिल से एक्चुअली काम किया है. तो जस्ट फिंगर्स क्रॉस दैट द ऑडियंसेस ऑल्सो सी दैट लव. कैसा एक्सपीरियंस था नहीं, genuinely it's genuinely like a once in a lifetime opportunity to face the camera with someone like Vikrant Massey, and I've gotten that opportunity in my first film itself. और जब मैं एक्चुअली वर्कशॉप्स कर रही थी रचित सिंह के साथ, मेरा एक्टिंग कोच है और मैंने उनके साथ कई सालों से काम किया है. लाइक we've done a lot of workshops together. बहुत सारे group workshops किए हैं. Once a week I used to go perform for actors room, जहाँ आप एक scene choose करते हो और आप एक group के सामने आप perform करते हो, and there's always feedback, there's always things you learn from, and we always discuss and all of that stuff, which has really helped me. और फिर finally we were doing a workshop for आँखों की गुस्ताखियाँ. 10 दिन की एक workshop थी और बहुत कुछ किया blindfold के साथ, especially just to get comfortable in the blindfold. तो we went on the beach with the blindfold, hotel lobby, I mean उनके building lobby में ऐसे चल रहे थे with the blindfold, listening to songs on a blindfold. It's so much prep and then finally it was the last day of the workshop and अगले दिन हमारी film शुरू होने वाली थी and obviously nerves, and I was like, now what? Now how do I do this tomorrow? And he really, I remember this very clearly. It was late night workshop. And he said, now Shana, whatever I've taught you, forget everything, let go of it, because you're going to be facing the screen with Vikrant Massey tomorrow, and you just have to listen to him. You just have to be in the moment and listen to him, because he's going to give you so much as an actor, and you're going to automatically feed off that energy. All you have to do is be in the moment, be present, be calm, and listen. And that's all I did, and I felt so much. He gives so much, and the one thing that I learned from him as an actor, I think sometimes कभी-कभी आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपने सीन के बारे में सोचते हो, अपने लाइंस के बारे में सोचते हो, अपने कॉस्ट्यूम के बारे में सोचते हो, अच्छा है ये दो, and that's also normal. As an actor you have to look out for yourself. But I think with Vikrant, the one thing that I learned as an actor, as a person as well, I think वो बहुत ही generous है. He's a very giving actor, and I think that's very important, that I learned, and I could only learn that on set, is that it's not about just you and your character and your scene. It's about a scene as a whole. It's about a moment and a feeling as a whole. Everything has to come together for that scene to feel good. And he taught me that, because I was picking up day by day that it's not just himself. He wants you also to perform. He'll tell you, okay, let's maybe do it like this, so that maybe I can do it like this, or फिर scene ऐसे हो जाएगा, and so why don't we do it like this? And then it comes together, and then you're thinking, okay, yeah, you have to. It's a team effort. It's not just a one person in the team, right? सब लोग हैं. And yeah, I really learned that from him, and I think I'll take that forward in my career, in a hopefully long career, touch wood, hopefully fingers crossed. A lot along the way. सर मैं क्या बोलूँ सर, ये इतनी बातें इन्होंने कह दी. थैंक यू सो मच अनाया. पर सच कहूँ तो मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा. थोड़ी देर पहले भी अभी हम चर्चा कर रहे थे तो किसी ने इनसे सवाल पूछा कि आपको इनके साथ काम करके कैसे लगा, तो मैंने कहा कि आप मुझसे पूछिए,
मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे शनाया के साथ काम करके कैसा लगा। ये इनकी पहली फिल्म है और जिस हिसाब से ये तैयारी करके आई हैं, ये वर्कशॉप्स के बारे में इन्होंने बताया, लगभग 1.5-2 महीने इन्होंने सिर्फ तैयारी की है, रचित के साथ, डायरेक्टर के साथ, राइटर्स के साथ, पूरी टीम के साथ मिलके। और जब पहले दिन मैं इनसे मिला आके, इन्हें मेरी लाइनें भी पता थी। मैं जो ग्रुप रीडिंग हो रही थी, ग्रुप रीडिंग के दौरान मैं स्क्रिप्ट में देख के झांक के पढ़ रहा था और ये कुछ सीन्स बिना देखे पढ़ रही थी। तो तब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये लड़की बहुत ही मंझी हुई कलाकार है, ये तैयारी बखूबी करके आई हैं, तो मुझे अपने आप को बेहतर करना होगा। और इस बात का भी एक एहसास था कि ये इनकी पहली फिल्म है, तो मन ही मन कहीं ना कहीं ये डर था कि आई होप आई डू नॉट लेट हर डाउन। तो इनसे इतना मैंने सीखा है, ये बहुत कुछ जो इन्होंने कहा है, मैं सेम चीज़ इनके बारे में कहना चाहता हूँ कि सीन एज अ होल कैसे काम करेगा, उस पर इनकी पकड़ बहुत अच्छी है। तो आई एम ग्लैड कि इनकी पहली फिल्म का हिस्सा मैं हूँ। एंड शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन सर, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एक म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब तो हम खोल ही लेंगे एक दूसरे के लिए। मैं इनके फादर साहब को भी जानता हूँ, मैं बहुत आदर करता हूँ उनका। ही इज़ सच अ फिनोमिनल मैन, और वही सेम कुछ क्वालिटीज़ इनके अंदर भी हैं। ही इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैन, बहुत अच्छे इंसान हैं वो भी। तो सेम चीज़ें इनके अंदर हैं। और हमारी कितनी चर्चा हुई है, आप तो घर भी आए, हमारी बहुत बातें हुई हैं कि एक अच्छा कलाकार मेरे ख्याल से इंसान तब बन पाता है अगर एक अच्छा इंसान पहले हो। तो वो सारे गुण जो हैं वो इनमें हैं। और जो अंत में इन्होंने कहा कि होपफुली लॉन्ग करियर, मुझे पूरी उम्मीद है कि शी इज़ हियर फॉर द लॉन्ग हॉल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। ऑल द बेस्ट नाया फॉर अ वंडरफुल करियर अहेड एंड थैंक यू सो मच। एंड आँखों की गुस्ताखियों पे दोबारा वापस आएँ तो ये एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है हम दोनों के लिए, मेरे लिए भी, क्योंकि मैं पहली बार एक ऐसा किरदार निभा रहा हूँ। क्लासिकल बॉलीवुड फिल्म है, रोमांटिक फिल्म है, और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इस जॉनर की फिल्में बनना ही लगभग बंद हो गया था। तो एक प्रयास है हमारी तरफ से, कोशिश है कि दोबारा एक कन्वेंशनल क्लासिकल बॉलीवुड फिल्म को जनता तक लेके आएँ, जिसमें जो एक क्लीन फिल्म है, पूरे परिवार के साथ आप बैठ के देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के टेक अवेज भी हैं, अच्छे गाने हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, और एक बहुत ही प्यार से, ईमानदारी से बनाई हुई कहानी है, जो उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए। जो आपके मुख्य कलाकार हैं वो गुस्ताखियां उन्हीं की तरफ से हो रही हैं, लेकिन क्या हो रही है उसके लिए तो मैं चाहूँगा नीरज जी फिल्म ही देखें। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। सर नर्वस बहुत था, मैं सच बताऊं तो शुरू में नर्वस बहुत था। जो हमारे डायरेक्टर हैं संतोष सिंह, उनके साथ मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता है, मेरे दोस्त हैं वो। उनके साथ मैंने कई साल पहले ब्रोकन बट ब्यूटीफुल एक सीरीज़ भी की थी। तो जो विशाल, सैंडी और मैं, जो हमारी तिगड़ी है, वो हम पहले भी काम कर चुके हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जैसे आपने कहा कि खूबसूरत हीरोइन, कन्वेंशनल बॉलीवुड फिल्म, रोमांटिक जॉनर, पहली फिल्म इनकी, लिपसिंक वाले गाने, मैंने आज तक किया नहीं है सर। और ये फिल्म इसीलिए भी की क्योंकि हमेशा से करने की इच्छा ज़रूर रही कि एक सॉन्ग एंड डांस वाली फिल्म तो मैं कभी जीवन में करूँगा, जिसमें थोड़े अच्छे गाने भी हों, अच्छी कहानी भी हो। तो नर्वस बहुत था मैं सर, लेकिन करते करते, जैसे हमने पहले भी कहा कि एक तैयारी करके हम गए थे, तो करते करते शनाया के साथ मेरे अधिकतर सीन्स हैं, तो बहुत मज़ा आया उनको करने में। पर अब दोबारा नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि रिलीज़ पास आ गई है। तो बस देखते हैं कि अभी जनता क्या कहती है। अब फिल्म तो बन गई है सर, अब तो कुछ बदल नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है क्योंकि मैंने फिल्म देखी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी फिल्म बनी है। कि एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, और जब मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो मैंने ये पहले भी कहा था कि आई ट्राई एज अ फर्स्ट टाइम, व्हेन आई रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं ऑडियंस के तौर पर पढ़ूँ स्क्रिप्ट। आई ट्राई एंड सी कि एम आई इंगेजिंग विद इट, एम आई इन्जॉइंग इट, एम आई लर्निंग समथिंग फ्रॉम इट, और फिर मैं एक एक्टर के लेंस के साथ स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ। एंड द फर्स्ट टाइम आई रेड इट एज एन ऑडियंस, मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ अपने बारे में सीखा, और द चेंजेस दैट आई हैव टू ब्रिंग इन माई लाइफ। मुझे लगता है कि हम एक सोसाइटी
है, एंड स्पेशली इन दिस जनरेशन एंड माई जनरेशन स्पेशली, क्योंकि देयर सोशल मीडिया, देयर इज़ सो मच जजमेंट आउट देयर, देयर इज कॉमेंट्स, देयर सो मच हैपनिंग. और कभी कभी आप बहुत क्विक टू जज हो, लाइक जब आप एक इंसान को जानती भी नहीं हो, आप ऑलरेडी उनके बारे में आपके प्री कंसीव नोशंस बन जाते हैं. एंड आई थिंक दिस फिल्म हैज़ टॉट मी, एंड आई एम लाइक दैट, एंड आई वॉज लाइक दैट. आई हैव ट्राइड टू चेंज दैट अबाउट माई सेल्फ. क्योंकि आप कभी कभी आप इंस्टाग्राम खोल दो और आप एक पिक्चर देख लेते हो, और वो आप एक जजमेंट ऑडी बन जाती है ऑटोमेटिकली, सबकॉन्शियसली. पर जब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और जब मैंने सबा के बारे में मैं और जान पाई, आई अंडरस्टूड कि there's a lot that you in life that you should just first leave those judgments behind. First get to know that person, get to know their story, get to know who they are actually dil se, और फिर make your judgments. फिर you see where it all takes you, what actually beautiful relationships you can actually make जब आप actually judgment नहीं करते हो पहले से. First you get to know them, and I think ये film और especially this character also, and both our characters, I think that is the main learning that you get from this is you can love without seeing, you can love without your eyes, and yeah, without giving too much away. जो इतनी खूबसूरती से इन्होंने कहा कि और इस फिल्म में एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य ये भी है कि वाकई ज़िंदगी जीने के लिए देखना ज़रूरी नहीं है. ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी को महसूस करना ज़रूरी है. और दूसरी एक चीज़ ये कि जो सोशल मीडिया की जजमेंट की जो इन्होंने बात की, अधिकतर आप देखेंगे नीरज जी कि हम खुद अपने जीवन में जो बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं या हमें ऐसा लगता है कि अचानक से प्रकट हो गई हैं, वो हमने खुद बनाई होती हैं. वी क्रिएट आवर ओन हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स. तो जैसे इन्होंने कहा, एंड आई एम ग्लैड यू सेड दिस थिंग, कि अगर एक बार हम वो प्रतिक्रियाएं बनाना छोड़ दें, एक छवि बनाना छोड़ दें, लोगों को इंस्टेंटली जज करना छोड़ दें, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी बाधाएं हम खुद खड़ी करते हैं अपने सामने. शायद वो रिश्ते भी उतनी ही खूबसूरती से खिलेंगे, वो अच्छे रिश्ते बनेंगे लोगों के साथ जो शायद कभी नहीं बन पाए. हम वो रिश्तों को ही पहले खिलने से रोक देते हैं. तो वो बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने कही है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे दो किरदार हैं जहान और सबा के, उतार चढ़ाव के बावजूद, लिमिटेशंस के बावजूद, जब एक दूसरे को अनकंडीशनली प्यार करते हैं लोग, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमने देखा होगा कि अगर माफ़ करने की कैपेसिटी हमारे अंदर है, जज ना करने की कैपेसिटी हमारे अंदर है, तो रिश्ते वाकई खिल सकते हैं. और लास्टली दोबारा वही कहूँगा कि ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी को महसूस करना ज़रूरी है, ना कि देखना, सिर्फ देखना. जी, हमारी फिल्म आँखों की गुस्ताखियाँ अभी रिलीज़ होने वाली है 11 जुलाई को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में. एंड हम होपफुली उम्मीद रखते हैं कि आपको बहुत मज़ा आएगा फिल्म देखने में, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आया फिल्म बनाने में. जी बिल्कुल. तो फिल्म के गाने तो आप सुन ही रहे हैं, और आप सभी का हम धन्यवाद कहना चाहेंगे इतना प्यार देने के लिए, हमारे फिल्म के गानों को इतना सराहने के लिए. बस उम्मीद यह है कि आप 11 जुलाई को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में आएंगे, हमारी फिल्म को देखेंगे और शनाया कपूर को ढेर सारा प्यार देंगे. ये इनकी पहली फिल्म है, तो प्लीज़ आप आइएगा ज़रूर और इन्हें पूरा सपोर्ट करिएगा, और हमारी फिल्म को भी. थैंक यू.